Dear honorable audience, we all know that flexible and vocational school education is an organic part of National Education Policy 2020. When we want to build an inclusive India, we must change with changing times. Educational scenario is changing fast. We must cope up with the pace of the change, and with at national and international levels. It may be that today's schools are not fit for tomorrow. Today's educational system is not fit for tomorrow. Even today's pedagogy is unfit for tomorrow. So with changing times, we have to change. By flexible education, we mean the education with learner at the center. The education which suits to the learner, the pace with which he wants to learn, the place where he wants to learn, the subjects which he wants to learn, and even the time duration during which the learner wants to learn. By vocational education, we mean training learners in skills, different skills. We know there are three variables in education, 3H. Head, the cognitive domain. The second it is heart, which is affective domain. And the third is hands, the psychomotor domain. So flexible and vocational education aims at training hands, making skilled personnels in India. All these forms of education are going to be main part of education, parallel with mainstream. They have their own syllabi, they have their own curricula, they have their own teaching learning strategies, they have their own assessments, and they have their own challenges and limitations. Today we will learn all the features of flexible and vocational education, their challenges, the limitations, and how to cope with them from Dr. Muhammad Munir Deshmukh Sahab. His name reminds me that in West Bengal there are certain titles which are common to both Muslims and non-Muslims, like Chaudhary and Mondal. Second one is Dr. Meheruddin Sahab. As President we have Dr. T.R. Kem, and as Co-President we have Mr. Abdul Karim Salar Sahab. May I request Dr. Muhammad Munir Deshmukh to come onto the microphone and address the gathering. Honorable guests and all present educationists over here, it's a pleasure for me to be in front of you today. And I guess we are already late, so I should, without any pleasantries, I should move ahead with my lecture. So, to start with it, I would like to tell you about the ayah of Quran which I told you, recited just now. Allah subhanahu wa ta'ala says कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन कौमों को नहीं बदलता जो अपने आप को नहीं बदलती हैं. So with this spirit, I think we should look at the field of education. At this point of time, what I observe is that we are way behind of the latest educational trends across the globe. Way behind. The topic is an interesting one. So let me start with what exactly flexible education is.
I always try to relate it with Quran and Hadith. There is an ayah of Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. What does Allah subhanahu wa ta'ala says here? That once the prayer is over, disperse throughout the land and seek the bounty of Allah. So, indication किधर है? आपकी मेहनत की तरफ है. Seek the bounty of Allah. So, we need to work on things. Only then we'll get the doors open from Allah subhanahu wa ta'ala. So, what exactly is flexible education? It's a customized system of education, whereas the customization is in the hands of the child. It is a customized system of education where the customization is in the hands of the child. इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं फ्लेक्सिबिलिटी के सिलसिले में. एक है कि फ्लेक्सिबल कोर्सेज क्या है, आप अपनी सहूलत के हिसाब से कोर्स कर रहे हैं. तो एनईपी ने तो कुछ तरफ इशारा किया है अभी, बट जनरली इंडिया में स्कूल लेवल पर फ्लेक्सिबल एजुकेशन नहीं है. इट्स अ वेरी रिजिड सिस्टम ऑफ एजुकेशन. बट देन यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी विद इन द क्लासरूम. वहां पर आपको कोई पकड़ नहीं करता है. तो हाउ डू यू ट्रेन द चिल्ड्रन, हाउ डू यू work on the children to bring the learning outcomes? That is the crux. That's what makes the difference. See, I showed you the video of Tanmay. He was not part of any school. There was no rigid system which he followed. The result is there. Why we are lacking in innovation and blah 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 blah? The reason is that we are not training our next generation to use their upper stories. I remember there was a convocation ceremony of IIM Bangalore, and Mr. Subramaniam Swamy was a speaker. So during the course of his lecture, he's a Harvard graduate, so he told, the leading countries of the world are those countries which innovate. And he quoted that 65% of the US GDP comes from innovation. 35% is from services. So are we putting our children onto that path of innovation? अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ सर, अभी से पर्ची आ रही है. शाहिद साहब, I was not at fault that it started at 3 o'clock. Okay, fine. So, in a nutshell, flexible education is a customized process. Okay. See, this is a typical, you can see this is how a classroom should look like. A happening classroom of today should look like. I'll show you again a small video because it has a larger impact here. I hope so this one runs. The transformation of space has completely elevated student engagement. How do we provide the environments that kids need? Sometimes to be in their caves and be quiet, sometimes to be at the watering hole and working in small collaborative groups, and sometimes in cross-pollination where they're able to really share their work and work with each other. I would suggest that you keep an eye on the flexibility being provided in the classroom environment. Around things. We have 5-gallon buckets in my room that we sit on. We sit on crate seating that I made in my backyard out of a crate and some plywood and some foam. And I also just threw a lot of pillows on the floor. I'll just bring this up if we is that something that might be important to your research? It might be important. From day one, I've said, you may sit anywhere you like as long as you're safe in our classroom. You can see that there's no uniform in the classroom. We're really looking at how do we support kids working collaboratively, and we can't do it
isolated in rows, and every kid's an island. The first thing that has to happen is the teacher has to have a vision for the room and a willingness to say, I'm going to throw out some of this stuff. I don't need this traditional schooling equipment. When you walk into a room that we have done, you'll see tables. You don't see individual student workspaces. In some classrooms, you'll see at least 3 kinds of seating. You'll see flexible bookshelves that are mobile, that can be moved, so that the room can be totally opened up, or little nooks and crannies can be created, so that everybody can see everybody and we can participate as a community. It helps plants grow. How can you do it on a dime? What we found is teachers are really hitting the streets the week that college kids leave town. And it could be a reading corner, and that's how I started. And then it grew and grew because it was so successful. If you see the dropouts in India, the percentage of dropouts, why does that happen? With the child is least bothered and is least interested in the studies. We have failed there, that we were not able to create that interest in the child. Not exactly the environment I want to be working in, but for the other people, clearly they have their optimum working environments. Administrators let us choose, and also since you let us choose, we ultimately choose what's best for us. We work better together and individually. You can again see there the kind of technology integration is there. Seeing the kids, That brings in a huge amount of flexibility in the classroom. they seem happier, they seem more likely to engage in conversation. Because the space in this room has evolved throughout the year, the students' work has improved immensely. Their grades have improved. I think I was able to put my thought across. A few months back, I had an opportunity to visit one of the leading schools in Ahmedabad. It's a Riverside School in Ahmedabad, run by Kiran Sethi madam. You won't believe it. The whole school, I mean, we were told about the whole school, given a tour, told about the philosophy of the school by a grade 3 child. And you would find that there are classes going on in the corridors. There were classes going on, you name it, and there. I thought that I should attend some technical class so that I could know, not lower, elementary classes. So I said that, okay, I want to observe a grade 9 physics class. So I was led to a laboratory, physics laboratory, and the lecture was going on there. So I don't think so that anybody has restrained or restricted us on this area. So we need to change. There are lots of new trends. I don't know how many of you have been involved in the actual involvement. Your involvement is there in the classroom on these aspects like blended learning and flipped learning. But these are the latest trends, and really making it the classroom and learning very flexible for the child. I would have dealt into what exactly flipped learning as and blended learning is, but because of the shortage time, I think I should move ahead. What does flipped education, flexible education brings? It brings adaptability to rapid change. It brings learning which is ingrained. It provides you. Okay. So there are a few things which I have listed here. Somebody wants, I would share this willingly. There are different dimensions of flexible learning, and which are all time, space, method, learning styles, content, organization, infrastructure, everything is there. There are certain reasons why we should move on to these areas like flexible education and vocational education. If you have the government statistics, you will be in a better position to understand what all is
why it's imperative. This is the feedback of data of ASER, ASER, that is 29 million children were out of school in India in 2018. There are certain challenges in the flexible education system. Challenges are that limited access to technology and internet, infrastructure constraints are there, socio-economic disparities are there, teacher training and readiness is there, language barriers are there, assessment and evaluation system is there, then traditional mindset and cultural attitudes are there. Then, of course, policy and regulatory frameworks are there, which now are, slightly changing in India. But I would say that at this point of time, that the biggest challenge for learning in India is the fixed mindset or rigid mindset of the teaching community. Now, coming to vocational education, I think all of you might be very well versed with it. Vocational education is something which will, lead somehow that you are able to earn something. There are also lots of challenges related to this. Vocational education globally is they have a very planned program in at least more than 75 countries across the globe. Then there is a lot of statistics about the unemployability and unemployability, people not being employable, the skill issue. Then we have certain World Bank statistics also, and the good news, it's a news which almost all of you might be knowing that 2017 the World Bank approved $250 million for Skill India initiative. Then there are certain challenges in the vocational education that are perceived social status issues are there, limited industry collaboration is there, outdated curriculum is there, there is a mismatch, a huge mismatch in the skill which the institutions and schools and organizations are providing and what exactly the industry requires. Then funding and financial barriers are there, certification and standardization is there, teacher training and quality is there. Industry partnership issue is there. There have been some good initiatives also by normally, since it was about school education. So there are certain, I have some data about that since 8th standard what vocational courses are there. Recently IIT Madras has started 2 courses. One is in data science and one is in electronics. And it is a staggered program where you complete first year, you get certificate, you complete second year, you get diploma, third year you complete, you get degree, and fourth year you complete you get a 4-year degree from IIT, and they go for placements also. This year it was started 3 years back, data science, and this year they have started for electronics also. There are certain lists what courses are available after grade 8th and what after grade 10th. Then there are certain organizations which which offer the certificate courses like Coursera is there, Udemy is there, government organizations are also there. Then there is a SWAYAM and FLP also, these initiatives. But in coming days, I am telling you, what exactly will make a matter is how digitally you are aligned with the global trends. So there is massive open online courses, and it is getting proper recognition now. So you can have good career options through that also. As educators, I would like to share this thought with you that we need to be informed. We need to be informed about the latest developments across the globe in the field of education. We should be ready to change ourselves. Then we should be the change makers. We should worry about the future, and we should be answerable to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is where I would like to conclude.
with the given time constraints. Jazakallahu khairan kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I would like to invite Chairman. Dr. Fauzia Khan Sahiba to facilitate Dr. Tilak R. Kim. Next in the line is Mr. Karim Salar Sahib. Then Dr. Muhammad Munir Deshmukh Sahib. Dr. Meheruddin Sahib. Dr. Nasruddin from Government of West Bengal. So next I would like to invite Dr. Meheruddin Sahib. आज यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, इनॉग्रेशन हुआ, वो टोटली जो है वो बच्चों के लिए है, चिल्ड्रन के लिए। तो मैं अभी एक स्टडी कर रहा था, ये जो पीढ़ी आ रही है हमारे सामने स्कूलों में पूरे वर्ल्ड में, इस पीढ़ी का कैटेगराइजेशन किया मिस्टर नील होवे स्ट्रास ने। वो ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं। उन्होंने कहा कि ये जो पीढ़ी आ रही है, उनकी एक बुक में पढ़ रहा था, उस बुक का नाम है ABC ऑफ XYZ। बुक का नाम है, आप भी पढ़िएगा, ABC ऑफ XYZ। नील होव, NEIL, नील HOWE। उन्होंने ये जो पीढ़ी है, जनरेशन्स हैं, जो हम कहते हैं जनरेशन गैप है, तो मैंने कहा कि जनरेशन गैप किस बात को जनरेशन ये कह रहे हैं। तो उन्होंने 1945 से जब ये वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ उसके बाद से कैटेगराइज किया जनरेशन्स को। तो 1945 में जो बच्चे पैदा हुए और 15 साल का गैप किया उन्होंने जनरेशन को कैटेगराइज करने में। अब जो मैं बोल रहा हूँ ये 7वीं पीढ़ी है, और शायद उन्होंने 1920 भी ले लिया उन्होंने, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1920 से लेके और 2025 तक का उन्होंने कैटेगराइज किया। इस जनरेशन का नाम रखा अल्फा जनरेशन। अब अल्फा क्या होता है, मैंने सोचा अल्फा ही जनरेशन क्यों कह रहे हैं, और अल्फा जनरेशन कब पैदा हुई है और इसका टाइम कितना रहेगा। तो 2010 में जो बच्चे पैदा हुए हैं और 2025 तक जो 15 साल के पीरियड होगा, इसमें जो बच्चे पैदा होंगे, दिस जनरेशन इज कॉल्ड द अल्फा जनरेशन। अब कुछ बच्चे तो हमारे पास Z जनरेशन के हो गए, उसको Z जनरेशन कहते हैं, क्योंकि Z तक अल्फाबेट थे हमारे इंग्लिश के। तब जब Z तक खत्म हो गए अल्फाबेट्स, तो उन्होंने जो किताब लिखी ABC ऑफ XYZ, तो उन्होंने यूनानी लेटर जो है अल्फा बीटा गामा, उसमें से पहला लेटर, यूनानी में 28 लेटर होते हैं यूनानी लैंग्वेज में, ग्रीक में, तो उसका जो पहला लेटर है अल्फा, दूसरा बीटा है और तीसरा गामा है, फिर डेल्टा है। इस तरह से उसके लेटर्स हैं। तो पहला लेटर वहां से ले लिया और इंग्लिश अल्फाबेट को छोड़ दिया, इसलिए इस जनरेशन को कहते हैं अल्फा जनरेशन। अब आप कहें हमने तो नाम ही नहीं सुना, आपने भी नाम नहीं सुना होगा ना, मैंने सुना था अल्फा जनरेशन। तो अब अल्फा जनरेशन के मैंने सोचे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको पढ़ाएं कैसे। अल्फा जनरेशन को पढ़ाने के लिए जो प्रॉब्लम आएगी सबसे बड़ी, वो टीचर्स के सामने आएगी जो क्लास में होगा, न प्रिंसिपल के सामने आएगी, न एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आएगी, न गवर्नमेंट के सामने आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, जो क्लास के अंदर जो बच्चा होगा ये अल्फा जनरेशन वाला, इसको कैसे डील करें। अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था और आप भी पढ़िएगा, लर्निंग विदाउट बर्डन। R.K. नारायण ने पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश की थी यूपीए गवर्नमेंट में कि लर्निंग जो है वो लर्निंग इज ए बर्डन। और प्रोफेसर यशपाल जो थे, जो कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने वो रिपोर्ट जो है सामने लाई कि भैया ये जो लर्निंग है, इसको आप लर्निंग कह रहे हो, जो बच्चा सीख रहा है, ये तो बोझ है इसके ऊपर। और इतना बोझ हुआ कि एक
प्रोफेसर यशपाल खुद केरला में गए, एक नर्सरी स्कूल में पहुंचे, पता ये लगा कि नर्सरी स्कूल के बच्चों को टीचर महात्मा गांधी के बारे में याद करा रही थी कि हु वाज महात्मा गांधी, वेयर ही वाज बोर्न, एंड उसके बाद पूछ रही थी व्हाट इज द नेम ऑफ महात्मा गांधी, पूरा नाम। तो प्रोफेसर यशपाल ने पकड़ लिया सर के, यार अगर महात्मा गांधी अब जिंदा होते तो इस बच्चे को, जो 4 साल का बच्चा है, उसको ये जो पढ़ा रही है टीचर, ये तो जुल्म कर रही है, वो तो रो पड़ते महात्मा गांधी। तो तब उन्होंने फिर लर्निंग ये विदाउट बर्डन, तो लर्निंग तो जो है ट्रेजर है। अब ये ट्रेजर, तो ट्रेजर कहते हैं खजाने को, लर्निंग इज ए ट्रेजर। और ये रिपोर्ट किसने पेश की? लर्निंग इज ए ट्रेजर विद इन, लर्निंग इज ए ट्रेजर विद इन। ये रिपोर्ट है जैक डिलोर्स की, और ये यूएनओ में पेश की गई 1996 में, यानी तकरीबन 27 साल हो गए। लेकिन हमारे दिल्ली के, इंडिया के टीचर्स को नहीं मालूम कि व्हाट इज लर्निंग द ट्रेजर विद इन। लर्निंग एक खजाना है, और ये जो बच्चा है लर्नर, इसको कैसे ट्रीट करें? पता लगा कि न तो हमें बच्चों के राइट्स के बारे में मालूम है, और ना ही उनकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम है। अब मैं जरा वो कैरेक्टरिस्टिक जल्दी जल्दी बता देता हूं, आप भी देख लेना। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अल्फा जनरेशन? वो दो बच्चे जो 2010 में पैदा हुए, 2025 तक रहेगी ये जनरेशन। उसके बाद अगली जो जनरेशन आएगी 25 के बाद, दैट विल बी कॉल्ड द बीटा जनरेशन, बीटा, और वो चलेगी तकरीबन 2040 तक। तो अब हमें कैरेक्टरिस्टिक जरा 2-4 बातें। तो लर्निंग विदाउट बर्डन के बाद, जब एक तो यशपाल से, प्रोफेसर यशपाल ने ये पूरा ऑब्जर्वेशन किया क्लास में जाके, और एक मैंने किया। मैंने एक बच्ची से पूछा 5th क्लास की कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइज, शोर में और संगीत में क्या फर्क है बच्चे? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि सुबह की स्कूल की जब घंटी बजती है तो शोर मालूम होती है, और जब छुट्टी होती है तो संगीत मालूम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे सुबह आ रही थी, सुबह की घंटी सुनकर स्कूल की, वो उसके लिए बर्डन है, और लर्निंग जो ट्रेजर था वो बर्डन में दब गया। तो जो ट्रेजर अंदर था ये बाहर कैसे निकलेगा? जो जमीन के अंदर ट्रेजर छुपा हुआ, जो इसका नाम मैंने रखा लेटेंट टैलेंट, बच्चों के अंदर लेटेंट टैलेंट छुपा हुआ है, इसको कहते हैं गुप्त ऊर्जा हिंदी में, यानी छुपी हुई ताकत, लेटेंट टैलेंट। अब ये ट्रेजर किसने नाम दिया, जरा सुनिएगा। और कहां से लिया ये ट्रेजर वर्ड? और यूएनओ की रिपोर्ट है, प्रोफेसर जैक डिलोर्स जो यूरोपियन कमीशन के चेयरमैन थे, यूएनओ ने उनको काम सौंपा कि 21वीं सदी आ रही है, 2-4 साल रह गए हैं, आप ये बताओ कि 21वीं सदी जो होगी उसमें एजुकेशन का क्या फीचर होगा, यानी एजुकेशन का क्या मॉडल होगा, और एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होंगे। तो उन्होंने कहा कि एम्स ऑफ एजुकेशन जो होंगे उस पर मैं रिपोर्ट तैयार कर दूं। उसमें 15 आदमी सेलेक्ट किए पूरे वर्ल्ड से। इंडिया से डॉक्टर करण सिंह को बुलाया गया, जो भारत सरकार में मिनिस्टर थे, महाराजा उनके बेटे, हरि सिंह के बेटे जो कश्मीर के राजा थे, उनके बेटे डॉक्टर करण सिंह, उनको बुलाया गया। और 4 उसमें लेडीज थी अफ्रीका की, और मतलब सब एजुकेशनिस्ट थे, और ये खुद ही एजुकेशनिस्ट जैक डिलोर्स। तो इन्होंने, मैंने देखा कि ट्रेजर वर्ड क्यों दिया इन्होंने, लर्निंग इज ए ट्रेजर विद इन, ये ट्रेजर क्यों नाम दिया? तो उन्होंने कहा कि मैंने ला फोंटेन नाम, चूंकि वो फ्रांस के रहने वाले हैं जैक डिलोर्स, कहा कि मेरे फ्रांस में एक बहुत बड़ा पोएट गुजरा है, उसका नाम है ला फोंटेन, 16वीं सेंचुरी में उसने एक पोएम, वो फैबल लिखी है। फैबल एक स्टोरी होती है जो पोएम की शक्ल में दी जाती है, बच्चों को याद कराई जाती है पोएम में पूरी कहानी। तो उसमें 4 सन्स, फादर एंड 4 सन्स कहानी है, वो आपने सबने पढ़ी है, बाप और उसके 4 बेटे, जो सुनी होगी। तो और यानी 4 बेटे आलसी होते हैं, काम नहीं करते, फादर जो है वो मरने के करीब होता है, चारों को बुलाता है, कहता है भाई मेरी जिंदगी अब गुजर गई, अब मैंने एक खजाना जो है, एक खजाना ट्रेजर जो है मैंने जमीन में खेत में दफन कर दिया, और तुम उसको निकाल लेना मेरे मरने के बाद। ये कहानी है, वो आपने सुनी होगी। फिर वो देखा उन्होंने तो वहां खजाना तो कुछ था नहीं, तो पूरी जमीन खोद दी चारों बच्चों ने, और उसके बाद उसमें लोगों ने कहा भाई जब तुमने जमीन खोद दी तो इसमें फसल डाल दो, बीज डाल दो। तो बीज डाला तो फसल उग गई, तो वो ट्रेजर बाहर निकला है, ट्रेजर, दिस इज अ ट्रेजर। एंड दिस वर्ड, उसकी 16 लाइन थी, 16वीं लाइन में ट्रेजर वर्ड दिया ला फोंटेन ने, और वो वहां से ही वर्ड लिया। ये जैक डिलोर्स कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट में, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। तो
तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ये जो बर्डन हो गया, तो इसलिए फ्लेक्सिबल एजुकेशन आई है कि फ्लेक्सिबल का मतलब, जब मैं टीचर बनना नहीं चाहता था, मेरा नाम इंजीनियरिंग में ना आ गया था, लेकिन किसी वजह से मैं इंजीनियरिंग में, मेरे फादर की डेथ हो गई, वरना मैं भी चीफ इंजीनियर होता। जो मेरे साथ दूसरा था साथी, उसका वो इंजीनियर बन गया और मैं एजुकेशन की तरफ चला गया। तो मैंने सोचा कि भाई मेरा मैथ्स तो बहुत अच्छा है, टॉपर हूं मैं मैथ्स में, तो क्यों ना मैं इसमें ही कर लूं। तो अब क्या हुआ कि मैं अफसुर्दा रहता था कि यार वो इंजीनियर बन गया, मैं टीचर बन गया। तो होते होते एक दिन मैं एनसीटी की लाइब्रेरी में दिल्ली में बैठा हुआ था, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की लाइब्रेरी में एक बुक मुझे मिली। ये सब टीचर्स को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि जिस प्रोफेशन को आप समझ रहे बर्डन, या ये समझ रहे कि भैया कुछ नहीं मिला तो चलो टीचर ही बन जाओ, तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि ये कितना बड़ा प्रोफेशन। जब मैंने वो कोटेशन पढ़ी किसी स्कॉलर की, यूरोपियन की, उस कोटेशन का आप लिख लीजिए, डाउनलोड करिए कि स्कूलों में लगा दीजिए। उन्होंने कहा कि टीचिंग इज ए प्रोफेशन इन विच द टीचर play the role of a doctor, of a surgeon and of a engineer, यानी टीचिंग इज इन सोशल इंजीनियरिंग। उन्होंने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग है टीचिंग। बच्चे को इंजीनियरिंग भी करना है हमको, और उसको जो है सोल डॉक्टरिंग भी करना है, आत्माओं का डॉक्टरिंग करना है, सोल डॉक्टरिंग, रूह की। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कोटेशन को पढ़कर मुझे खुशी हुई कि इसमें लिखा है कि टीचिंग इज एन ह्यूमन इंजीनियरिंग एंड सोशल डॉक्टरिंग, सोल डॉक्टरिंग, ह्यूमन इंजीनियरिंग एंड सोल डॉक्टरिंग, सॉरी वर्ड फिर याद कर लीजिए, टीचिंग इज एन ह्यूमन इंजीनियरिंग एंड सोल डॉक्टरिंग, ये वर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बच्चे अल्फा जनरेशन हमारे पास आ रही है, इनका हमें ह्यूमन इंजीनियरिंग भी करना है और सोल डॉक्टरिंग भी करना है। अब आता है कि अल्फा जनरेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैं बता देता हूं, और फिर इनकी फिलोसफी क्या है इन बच्चों की। इनकी फिलोसफी जब मैंने पूछी तो मैं प्रिंसिपल को ट्रेनिंग दे रहा था, जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के करीब में पहुंचा तो प्रिंसिपल को मैं ट्रेनिंग दे रहा था। तो एक प्रिंसिपल उठे और उन्होंने कहा कि सर आप जो बता रहे हैं कि हमें बच्चों का ऑनर करना चाहिए, मैं कह रहा था कि बच्चों को 2 H चाहिए, 2 H2, एक H चाहिए उसको ऑनर, वो ऑनर चाहता है, इज्जत चाहता है अपनी, और दूसरा चाहिए उसको हैप्पीनेस, खुशी चाहिए हर दम, 24 घंटे कंटिन्यू ऑनर चाहिए और कंटिन्यू खुशी चाहिए। सुबह तो हम ऑनर करते हैं बच्चे का, मेरा प्यारा बच्चा, उसको बड़ी इज्जत देते हैं, और दोपहर के बाद स्कूल से आता है तो उसको इतनी तरह से जलील करते हैं, या कुछ भी बात हो तो उसको जलील कर देते हैं। तो प्रिंसिपल ने कहा कि सर मैं अपनी बेटी के यहाँ गया हुआ था, मुझे नहीं पता था कि हमको बच्चों का इतना ऑनर करना चाहिए। तो मेरा 4 साल का नवासा आया और उसने कहा नानू एक शिकायत है आपसे। मैंने कहा क्या शिकायत है? कहा कि अपनी बेटी को आप समझा के जाना। 4 साल का बच्चा, ये है अल्फा जनरेशन, अभी की बात है, ज्यादा दिनों की बात नहीं है। तो कहा कि उसने कहा कि मैंने कहा क्या शिकायत है मेरी बेटी से आपको? कहा कि देखो परसों 3-4 दोस्त आए थे मेरे गली के बच्चे, और मेरे से शीशे का गिलास टूट गया और वही मम्मी ने थप्पड़ जड़ दिया, यानी वही मेरी बेइज्जती कर दी, उनके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। तो ये अल्फा जनरेशन जो है, इसके टाइम हो गया सर, इसलिए अल्फा जनरेशन को के जरा वो देखिए, वो कहते हैं नोटोमो, उनका फिलोसफी है नोटोमो, NOTOMO। नोटोमो फिलोसफी क्या है अल्फा जनरेशन की? कि नो टूमोरो, हेयर एंड नाउ, अभी दो और आज ही दो, हेयर एंड नाउ, यही दो और अभी दो, हेयर एंड नाउ। दूसरा थ्योरी है कि फोमो, एक फोमो बड़ी खतरनाक जो है बीमारी आ गई, वायरस आ गया, और इसकी रिपोर्ट मेरे पास आ गई टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो हिंदुस्तान टाइम्स में, या सोशल मीडिया पर अहमियत ढूंढ रहे बच्चे फोमो का शिकार। फोमो क्या है? फोमो जो है एक बीमारी आ गई बच्चों में अल्फा जनरेशन में, उसका नाम है फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो कहते हैं मेरे से कुछ खो ना जाए, वो सब अपने ऊपर डिपेंड, वो कहते हैं हम वी आर द सेल्फ डिपेंडेंट। वो कहते हैं कि हमारा ही सब कुछ है,
तो ये जो बीमारी है, वायरस आई तो पूरी रिपोर्ट है, और इस बीमारी में बहुत बच्चे जो हैं सुसाइड कर रहे हैं फोमो में, कि वो सोशल मीडिया पे तो उनको लाइक्स बहुत मिल गए, लाइक्स मिल गए बहुत सारे, लेकिन दूसरे लोग उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो वो फोमो का शिकार हो जाता है बच्चा, कि मेरे लाइक्स तो इतने आ रहे यूट्यूब पर, लेकिन यहाँ मुझे कोई मतलब पूछता नहीं है, मेरा रिगार्ड नहीं करता। तो एक तो ये है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनका ऑनर करें, रेस्पेक्ट करें, और दूसरी ये बात है कि एक रिपोर्ट और आप ये पढ़ लीजिएगा जरूर, टीचर्स के बारे में आई है, और मेरी रिपोर्ट नहीं है ये है भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन, चूंकि ये स्कूल का सारी एजुकेशन चल रहा है पूरा प्रोग्राम, स्कूल एजुकेशन के जो डायरेक्टर थे और एक सेक्रेटरी है वहां की, अनीता कारवाल सेक्रेटरी हैं एजुकेशन की, और रजनीश कुमार डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है। तो उन्होंने कहा कि जो अल्फा, उन्होंने भी अल्फा वर्ड यूज किया है कि लाइफ लॉन्ग लर्नर है ये सबसे, ये जो पीढ़ी आ रही है 21वीं सदी में, शिक्षा एजुकेशन चाहते हो, वेयर डू यू, कहाँ चाहते हो, व्हेन डू यू, हम क्या कर रखा हमने कि लाइन लगती है सुबह प्रेयर में, घंटी बजती है, लाइन में लग गए, प्रेयर हो रही है, पूरा 7 दिन 6 दिन स्कूल के जो 6 दिन है तो बस एक ही लाइन में खड़े हुए हैं, एक ही तरफ वो देख रहे हैं, पूरी एक ही दीवार दिखाई देती है उनको, 3 दीवारें स्कूल कमरे की नहीं दिखाई देती। हम उनके फेस नहीं चेंज करते हैं, उनको पूरा बिल्कुल नहीं बदलते हैं, उनका स्ट्रक्चर, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो फ्लेक्सिबल लर्निंग में जो है वो इन्होंने रिपोर्ट दी थी कि जो टीचर होगा वो ये अपने आप को ये ना समझे कि हरफन मौला हूं मैं, हरफन मौला कोई टीचर ना समझे कि मैं आई एम द ओशन ऑफ द नॉलेज, कि बच्चा मेरे से जो है पूछेगा सवाल मैं उसका जवाब दे दूंगा। अगर ऐसे सवाल पूछ रहे बच्चे कि वो परेशान है टीचर के इनका जवाब क्या दें, तो उस टाइम टीचर को बोलना चाहिए कि लेट अस फाइंड आउट, आओ तलाश कर लेते हैं गूगल से, या भैया डिस्कवर करते हैं या अपना सोल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो फ्लेक्सिबल एजुकेशन में क्या होगा, हमने एक जगमग थ्योरी अपनाई हुई है स्कूलों में, जगमग थ्योरी। जगमग का मतलब हमने टीचर को तो जग बनाया हुआ है और बच्चे को मग बनाया हुआ है। अब टीचर कहते हैं बच्चों से कि आओ अपना जो मग्गा है वो मेरे जग में से भर लो, मेरे पास इतनी नॉलेज है, आई एम द ओशन ऑफ द, आई एम भंडार ऑफ द नॉलेज, समुद्र हूं मैं, ज्ञान का सागर हूं, और मेरे सागर में से तुम अपना गागर भर लो। तो इसका नाम मैंने रखा जगमग थ्योरी। तो परेशान है टीचर को कहना चाहिए कि भाई मुझे नहीं मालूम, मेरे से नहीं आता यार, लेट अस फाइंड आउट, आओ मिलकर। यही फ्लेक्सिबल एजुकेशन, उनका रिगार्ड करना है, उनका रेस्पेक्ट करना है, उनको कहना है कि यस। और 6 चीजें बच्चे चाहिए, एक बुक पढ़ रहा था, 6 थिंग चिल्ड्रन नीड। सबसे पहले उनको चाहिए सिग्निफिकेंस। वो कहते हैं हम जैसे पैदा हुए हैं ना भैया, हमें सिग्निफाई करो। दूसरा है वो कहते हैं हमको जो है कंफर्म करो, जो हम हैं बस हैं, दूसरा नंबर। तीसरा सिक्योरिटी चाहिए। चौथा बच्चा जो है, चौथी पॉइंट है उसका कि उनको चाहिए प्रेज, तारीफ चाहिए। और उस बुक में लिखा था तारीफ भी ऐसे करो, डायरेक्ट नहीं करो। वो किचन में अगर बच्ची तो मेहमान आए तो उस टाइम तारीफ करो कि मेरी बेटी बड़ा अच्छा कर रही है, और वो सुन ले अपनी तारीफ को। प्रेज भी ऐसे करनी चाहिए। थैंक यू। तो बहुत सारी बातें थी जो मैंने एक्सपीरियंस की बच्चों में, और मैं रात दिन बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ ये बात करता रहता हूँ, और बहुत सारी बातें थी। अब चूंकि टाइम कम है इसलिए आई स्टॉप माई टॉक्स। थैंक यू वेरी मच। अच्छा। So 5 to 10 minutes for question answer session. If you have any question, please ask the speakers. Can I just Yeah. talk for a minute? आप लोगों का इंटरेस्ट देख के ऐसा लग रहा है कि ये सेशन काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है।
लेकिन हमारा ये सेशन हमको 4 बजे एंड करना है, क्योंकि अभी और 2 सेशंस है। आप स्क्रीन पे जो टाइमिंग देख रहे हैं उस हिसाब से 4 o'clock वी हैव टू एंड। लेकिन कॉन्फ्रेंस में से टेक अवे जब भी हमको मिलेंगे जब हम ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस फॉर्म कर सकेंगे। यहाँ वो रेजोल्यूशंस के लिए हम यहाँ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन, क्वेश्चन आंसर मतलब आप सिर्फ आपका सजेशन दीजिए कि इस सेशन में क्या रेजोल्यूशन हो सकता है, क्या रिकमेंडेशन हो सकता है, सरकार से क्या रिकमेंड करना चाहिए हमने, और अपनी कम्युनिटी से क्या रिकमेंड करना चाहिए हमने। एक 5 मिनट के लिए हम ये सेशन रखते हैं। बोल रहे हैं हम क्वेश्चन आंसर सेशन, लेकिन आप इसमें सजेशन सेशन समझिए आप उसको। और एक 2-4 लोग अगर कुछ बहुत अहम सजेशन है आपके पास इस सेशन से मुताल्लिक़, तो आप प्लीज़ यहाँ पर 1 या 2 जुमलों में वो बात कहिए। और उसके बाद हम ब्रीफली अपने चेयरपर्सन ऑफ द प्रोग्राम और को चेयरपर्सन आखिर में बोलेंगे, लेकिन 4 o'clock वी हैव टू एंड द प्रोग्राम, नहीं तो हमारे आगे के सेशंस मुश्किल हो जाएंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग अपने मोहल्लों में या अपने घर के अंदर बच्चों को खेल के ज़रिए पढ़ाने का इंतज़ाम करें, क्योंकि ये इंतज़ाम कोई और करने वाला नहीं है। ना हम सरकार से उम्मीद कर सकते हैं और न ही वो इसके लिए तैयार होगी। मोहल्ले के एतबार से 10 घरों को मिला करके एक छोटे से मोहल्ले के एतबार से हम सेक्रीफाइस करें, अपने घर में जगह बनाएं और वहाँ पे उस तालीम का इंतज़ाम करें जिसके बारे में मुरीर देशमुख साहब ने बताया। बहुत शुक्रिया। A very important suggestion is that हमारे यहाँ इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत यह है कि सिस्टम के अंदर चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं, मतलब लार्जर सिस्टम को समझे हम, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे हमारे मोबाइल और ऑनलाइन लर्निंग हमको प्रोवाइड कर रही है। अब स्कूल्स को चाहिए, कम्युनिटी को चाहिए कि उनको वो प्रोवाइड करे हर बच्चे को, ताकि उस बच्चे के अंदर जो अपनी कैपेसिटीज़ हैं वो इनहिबिट होने के बजाय वो एग्जिबिट हों। अब स्कूल्स का, लर्निंग्स का, कम्युनिटी का फोकस होना चाहिए चाइल्ड के ऊपर, जिसके बारे में यहाँ पहले उसमें कह रहे थे देश पांडे साहब, लेकिन उसको अडॉप्ट करना, उसको बच्चे को कम्युनिटी सेंट्रिक बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको फ्लेक्सिबिलिटी देना, उसको अवेलेबिलिटी देना रिसोर्सेज की जिनको वो मैनेज कर सके। तो इस वक्त स्कूल्स का जो नया पैराडाइम आना चाहिए मोहल्ला मोहल्ला, वो ये है कि वो उसकी लर्निंग और लेवल के हिसाब से रिसोर्सेज पाइल अप करे और उनको साइन पोस्ट करे। अगर आप मोबाइल ऐप ही तैयार करके दे दें हर बच्चे को कि पहली जमात के अंदर वो इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकता है, इनको स्टडी कर सकता है, बच्चा बजाय अपने टाइम फेंकने के इंटरेस्टिंग तरीके में सीख और पढ़ सकता है। क्योंकि आप कोई भी बड़े से बड़ा भी मल्टीनेशनल ये नहीं पूछ रहा कहाँ से पढ़ के आ रहे हो, वो ये पूछ रहा है तुम क्या ले के आ रहे हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि हमारे कौम के जो बच्चे हैं, छोटे जवानों में तो है जज्बा है, उसी तरह हमारे जो छोटे बच्चे हैं जज्बा, कॉन्फिडेंस तो इस माशाल्लाह बहुत है। और ये जो जोश है, ये जज्बा है, इसको कहीं ना कहीं हमको थोड़ा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो जितने हमारे टीचिंग प्रोफेशनल वाले यहाँ पर है, बीइंग मैं प्रिंसिपल गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बहुत ही रिमोट एरिया है, एजुकेशन के बारे में बहुत ही अवेयरनेस कम है, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का भी लिटरेसी बहुत कम है। और बीइंग ए मुस्लिम कम्युनिटी, इनका अगर लिटरेसी देखेंगे 10 के नीचे आएगा। हाँ, तो छोटा सा मेरा ये सजेशन है, जितने भी मेरे टीचर्स है, प्रिंसिपल्स है, एजुकेशन से रिलेटेड, सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है, अपने जैसे हजरत ने बताया, सभी जो मोहल्ले के बच्चे हैं, इनके जोश को, इनके कॉन्फिडेंस को हमको कहीं ना कहीं एजुकेशन के दायरे में ला के उनको मोटिवेट किया जाए, ताकि हमारे बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस से जो एजुकेशन में आगे जाके हमारे कम्युनिटी के लिए और हमारे कंट्री के लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल ये साबित होंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। लेडीज़ में से एक लास्ट सजेशन, लेडीज़ कुछ नहीं बोली हैं, लेडीज़ का एक सजेशन हम लेंगे और फिर हम अपने ऑनरेबल जी बोलिए। मेरा सजेशन ये है मैडम कि अगर टीचर्स 2 कदम बढ़ा रहे हैं तो घर के पेरेंट्स ने, घर के लोगों ने आगे बढ़ के और 2 कदम संभालना चाहिए। ये जो है तो ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा, हमने क्या करना चाहिए?
इसके लिए हमने जो है तो ऐसा अपने घर में या अपने मोहल्ले में मीटिंग्स लेके वो लोगों से बातचीत करनी चाहिए, घर के लोगों से मिलके, पेरेंट्स से, उनके माओं से, कि आप हमारा साथ दीजिए। हाँ, आप हमारा साथ दीजिए, हम तो हैं लेकिन आप भी हमारा साथ दीजिए, और जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। जी, शुक्रिया। So now it's time to listen to our chairperson and co-chairperson. I'm inviting Dr. Tilak R. Kim, who has been former Vice Chancellor, Venkateswara Open University, former Secretary of University Grants Commission, Ministry of Human Resource Development, Government of India. He has been advisor AICTE, Government of India, Registrar of IGNOU, Government of India, and more than that, advisor to Ministry of Agriculture, Republic of Mozambique, Africa. Let's listen to him. Sir, please come. Well, as you have heard, I have worked and worked out in all stream of higher education, be it general education as Secretary UGC, as first and founding Registrar of IGNOU, ODL, and the Senior Advisor in AICTE. So this is the gamut of higher education that we have. For school, I have gone myself, and that is my experience. I had gone to a village where in the Chopal of a Pradhan, under a neem tree, some students used to bring their own, what you call, दुताई और एक ऐसा कपड़ा वो बिछा के बैठते थे, पढ़ते थे. But then over the years, being in these apex bodies, I have also learnt of primary education, for which I have been made to stand as chairperson of the session. I don't know whether I will be doing justice to this. But let us see. We talk about the flexibility and the vocationalization in primary education. Primary education. And the primary education gamut starts at the play field, play school, primary, then secondary, senior secondary. That's the gamut. Now, if you are talking about the gentleman, my friend here, the speaker was talking about to start the vocational and flexibility at the kindergarten or the primary school. Now, are we talking about the whole, in totality for a whole children army that has to go to the school, or only few people who can afford this, as in the what you call the public school? As you know, the government school, we have population of students up to 120 million. Total population, to my mind, I read somewhere, it is 250 million students. Now, where to see the way to induct that vocational? I don't criticize the government. I don't even criticize the person who has embedded this in our policy. But to my knowledge, even the earlier people had thought of vocational and flexibility, and therefore they had developed ITI, not IIT, for those who wish to go in for this kind of a vocational education. Then there were one more cluster, that is polytechnic. So those were catering to the need of the people who wish to go for skill development after having done some kind of a matric or senior secondary. And then at the graduation level, we in UGC started as 100 plus courses in the name of vocationalization of education. For example,
if a child is opting BSc, so in BSc he would have PCM, and in the chemistry he will have the additional course for shop making, distilled water making and other things, so that after doing the graduation he becomes ready for the market and produce those kind of items and become self-sufficient. We have forgotten, because somebody made and now nobody wants to see, as you said in the morning. If something has been decided by someone, so some other reason has to think otherwise. I am retired now, I can say that it is happening. Now, the same way, there is a issue going on, and Madam Fawzia must have faced it in the parliament too. They want to make it a uniform monarch of education, National Commission for Higher Education, embedding or merging UGC, AICT, NCT and whatnot. So let me remind, 20 years back or 25 years back, the UGC had the sole responsibility for technical education, teacher education, law, etc., etc., etc. Even agriculture used to be taught under the umbrella of UGC courses. Then it was thought that let's have separate bodies for better coordination, and they were created. Indian Council for Higher Education, Medical Council for Indian Medical Council, then NCT, AICT, they were all created, separated. Now I fail to understand why again bringing back without knowing whether the earlier system has served the purpose or has failed. If it failed somewhere, how to correct it? And instead of making from one parliament house to another without knowing whether the old one is doing well or not. Well, I'm sorry to say, but then it has to be. 3 years we have been listening, and we particularly, whenever we go for a talk, somebody asks, sir, what happened to that overarching body called council? So they have, well, a kind of feeling has come in the mind of people that all will have to go. Therefore, neither UGC nor AICT takes stern action, because they know any day we have to go. That is one. Now it is up to you, to us, to think about it, whether it should be done or not done. But in so far as school education is concerned, we have to see whether we are talking about the population, the whole population, that is somewhere, say, if it is 20 to 30% of school-going children. In that scenario, we have also to see whether those children who are from the deprived family are available for these kind of schemes where you are thinking of introducing playground and this and that. I see that, and I can say with firmity that poor student to the school, state school or government school, perhaps they are hungry. They get their midday meal, whatever kind. Now, you have government school for the primary education, right? And you have, in a designed way, not provided teachers there, no classroom, no blackboard. So the poor people, they go and they have their midday meal and come. At the same time, you have another government agencies like IIT, IIMs and other national institutions which are government, fully funded. But these school boys which have been deprived from the schooling cannot go
only the rich people go there. Children of rich people who have the benefit to go to the, a kind of tuitions, heavy tuitions, and tuition after tuition. So unless we remove these kind of paradox in our system, these kind of good words perhaps are the good story to be told, to be listened, but in what way it would help? The school education admission is at par at a kind of a private school and the public school. But after 5-6 years, the dropout in the government school, it is 50 to 60%, and only remains some part in the private school. Even higher education, you have gross enrollment ratio of 27%. Means out of 100 eligible students out of 100 eligible students who are in the age of 18 to 22 or 23, if there are 100 students, only 27 go to the colleges. Who remain behind? It is all these students who have read in this primary school done by the government. Because there is no teacher, there is no facility, they do not have the facility, there is no money, heavy fees, and therefore the enrollment remains up to 27%. In school, up to coming from 96% in the primary, 70% to senior secondary. In the school going, it becomes only 54%. So there is a lot of dropout in school. And it is not in the actual school of all kind, it is only in that school which is so-called managed by the government. So if we understand this design, well, this would be better, and we can think of some kind of feedback. Government agencies cannot give any feedback to the government. I am glad that a lot of deep thinking is going through in the last 2-3 sessions I have seen. Very careful, very interesting decision, which people cannot talk generally. We can send our views and observation through the recommendation of this NGO kind of organization. And then perhaps our person sitting there can push that further. And that's why perhaps I like that idea to have the observation from the audience, note it down, embed in our report, and push in the name of the report of the federation or committee. And that will be taken care of. There are many things, Madam Fauziya, particularly for you. Difficult to say in a government system. I recall a case, and this is for your interest, Madam Fauziya, where the NET was compulsory. No matter one is PhD, he or she had to do NET. But some government comes, and one day they have a meeting, and they said, once you have done the PhD, there is no need for the NET. And all those people who are working in support of that particular umbrella were brought in as teacher, getting salary from the university and college and working for me. We have to think about that. This way the policy will not work. Now, my friend said something about these 2 slides. They are all right in that scenario where all get the food, all have the right to go to the school, and perhaps same kind of a school. Here, perhaps it's difficult. I am given a chance to stand before you. Thank you very much. मैं दावत देता हूं जनाब करीम सरार साहब को। आप वाबस्ता हैं मेडिकल कॉलेजेस से, नर्सिंग कॉलेजेस से, लॉ कॉलेज से, इस्लाह मुआशरा से, आप एक्स चेयरमैन हैं नगर निगम के। आइए सर। बहुत काबिल मुबारकबाद हैं मैडम, आप
और एजुकेशन मूवमेंट के हमारे तमाम जिम्मेदार, और खुशकिस्मत है वो तमाम लोग जो कोरोना के बाद में एक नई ज़िंदगी लेकर आए और अल्हम्दुलिल्लाह कौम की तालीमी ज़बू हाली, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके नेगेटिव पॉइंट्स पर हम लोग सुबह से यहाँ पर सब के सब बैठे हैं और 2 सेशन बैठेंगे। कल भी हमको यहाँ पर बैठना है। मैं कह रहा था कि पहले मुझे खड़ा करो, लेकिन शायद कुर्बानी शायद मेरी लिखी है, पूरा दबाव मुझ पर है। मैडम के इशारे पर मैं अपनी बात कर भी पाऊँगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन बहरहाल सभी हमारे गेस्ट और सामने बैठे हुए अजीम हमारी माँ बहनें, ख़वातीन, बुज़ुर्ग और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये सेशन का टॉपिक है फ्लेक्सिबल एंड वोकेशनल एजुकेशन। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जो 2020 खेला गया है उससे सब आप वाकिफ़ है। इतनी बड़ी पॉलिसी जो मुल्क को 25 से 30 साल चलाने का काम करेगी, ना तो किसी एक्सपर्ट कमेटी के सामने उसका मसवीदा आया, ना कोई राय मांगी गई, बल्कि कोरोना में जब सब लोग घरों में छुप के बैठे थे उस वक्त ये बम हम पर डाल दिया गया। तो नीयत तो साफ नज़र नहीं आती, फिर भी बहुत सारी चीज़ें इसमें पुरानी हमारी पॉलिसी को लिया गया है और कुछ चीज़ें उसमें डाली गई है। इसकी तमीज़ कलमात में मिशन नालंदा, मिशन तक्षशिला, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, इसलिए नीयत की बात समझ में आती है। आज का टॉपिक है फ्लेक्सिबल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन। मैं मुझे माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, इस उन्वान का हक हम इस सेशन में अदा नहीं कर पाए मैडम। मुझसे पेश रो मुकर्रिर ने भी अंग्रेज़ों की क्लासरूम की तस्वीरें, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, हमें किसी इंडिया की स्कूल की तस्वीरें बताते बेहतर होता। यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं कि हम ऐसे बच्चियों को हमारी इस हरकत के साथ बिठाएंगे। यूनिफॉर्म हमारी एक डिसिप्लिन का और इताअत का बहुत बड़ा हरबा है, बहुत बड़ा हथियार है। यूनिफॉर्म पहन के ना आने बच्चे ये बागी होते हैं, और जो बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं वो हमारे इताअत करते हैं टीचर हजरात की। उनकी इताअत जब तक नहीं होगी इल्म ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब बचपन की तालीम, बच्चों को हम ये समझते हैं, सरनीपा अल्फ़ाबेट और वगैरह जो बताई है, आप तो इंस्पेक्टर हैं दिल्ली की स्कूलों के, टीचर्स को आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं भी थोड़ी मोटी चौंक से चलाता हूँ, मैं भी जानता हूँ। बच्चे बहुत होशियार है। टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ चांद पर सबसे पहला कदम किसका पड़ा? एक बच्चा खड़े हुआ कहने लगे, सर नील आर्मस्ट्रांग का। वेरी गुड, बैठ जाओ। बोले बच्चों बताओ दूसरा कदम चांद पर किसका पड़ा? वो बच्चे ने कहा सर उसका ही पड़ा। टीचर बहुत नाराज हुए और कहने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं सवाल किया, पूछ जाओ के। बोले सर क्यों गुस्सा कर रहे? बोले जवाब सही दो। बोले सर सही तो जवाब दे रहा हूं। बोले कैसे? बोले सर वो कोई लंगड़ी खेलने नहीं कहता, एक पाँव पे पहले करा और फिर दूसरा रखा उसमें। तो बच्चे बहुत होशियार है। टीचरों को आज बहुत ज़्यादा लैस होने की ज़रूरत है। एक टीचर ने तकरीबन उनकी उम्र रिटायरमेंट के 1-2 साल जो है तो रह गए थे, बच्चों से पूछा बताओ बच्चों मेरी उम्र क्या है? पता नहीं क्यों पूछ लिया उन्होंने। एक बच्चे ने कहा सर 28 साल। उसको बुलाया, 100 का नोट दिया, बेटे तूने इतनी अच्छी मेरी उम्र बताई, ये बता कैसे बताई? बोले सर सच बताऊं क्या? बोले हाँ बताओ। बोले हमारे नुक्कड़ पर एक बड़े मियाँ है, दिन भर गालियाँ देते बैठते, उनकी उम्र 56 साल है, वो पूरे के पूरे पागल है, मैंने आपकी आधी उम्र बता दी, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। बच्चे बहुत होशियार, ये समझिए। अगर आपने इन बच्चों को समझ लिया ये बहुत होशियार है, तो यकीनन आप तैयारी करके आएंगे और पूरी ताकत से बच्चों को पढ़ाएंगे। वो बच्चे कभी ज़ाय होने वाले नहीं है, आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी की जहाँ तक बात है, इसका तस्वुर हायर एजुकेशन में, केंद्र साहब से मेरी बात हो रही थी, हम जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो बच्चा साइंस का है, उसको अगर लगता है कि उसको मैथ अच्छा नहीं लग रहा, वो मैथ छोड़ के अपना सब्जेक्ट बदल सकता है। एक दूसरे के सब्जेक्ट बदलने का सिलसिला है। मैडम मुझे बताइए, 135 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में ये चूचू का मुरब्बा नहीं हो जाएगा? ये तजुर्बा छोटे ममालिक का है जिसकी आबादी महाराष्ट्र के बराबर है। उन मुल्कों में ये हो सकता है,
इसका छोटा मोटा फायदा भी हो सकता है हमको, लेकिन इसके ज्यादा बेनिफिट नहीं है। एक तो पहली मार धाड़ के हमारे आने के बाद में मंजिल तय करते, फिर उनका दोस्त जाता मैच छोड़ के उर्दू में, वो बोलता मेरा दोस्त उधर गया, मेरी सहेली इधर गई, मैं भी साथ ही छोड़ूंगी, वो भी आ रही, चूचू का मुरब्बा हो जाएगा। इसको भी बहुत संजीदगी से लेना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को अदल बदल करना, क्या करना। आपका ये फ्लेक्सिबिलिटी का, वोकेशनल का जो मामला है, तो मैं साफ कहता हूं कि हाई स्कूल के अंदर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये तस्वुर हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है। यानी बच्चे को कारपेंटर, सुतारी काम, सीमेंट का काम, उसको किस तरीके से इलेक्ट्रीशियन होना है, किस तरीके से फिटर बनना है, एयर कंडीशन कैसे रिपेयर करना है, ये 9वीं से बच्चों को सिखाया जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान होगा गरीब कौम का, उन गरीब बच्चों का, वो टैलेंटेड बच्चों का, जो 2 साल 3 साल में एसी रिपेयर करना सीख जाएंगे, इलेक्ट्रीशियन बनना सीख जाएंगे। माँ बाप कहेंगे बेटा आगे की पढ़ाई मत कर, कोई हाई एजुकेशन जाने की जरूरत नहीं, ये ले और 500 रुपए कमा के लाई। निगेटिव पॉइंट है इस एजुकेशन पॉलिसी का, आपको छांटना पड़ेगा। सजेशन मैडम मेरा कि हाई स्कूल लेवल से बच्चों की टैलेंट को देख के छांटना पड़ेगा। जो बच्चे हायर एजुकेशन में कल के मुस्तकबिल के कलेक्टर डीएसपी बन सकते हैं, उनकी क्लास अलग की जाए, और जो बच्चे यहाँ की बजाय यहाँ से काम करते हैं, उनके हक में अल्लाह ने कला दी है, उनको टेक्निकल एजुकेशन सिखाया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला उसका बेनिफिट हमारे समाज को मिल सकता है। एजुकेशन पॉलिसी हमारी कैसी चल रही है, 1-2 मिनट बोल लो और के बाद, हालांकि चाय का वक्फा है, आप लोगों ने मेरा साथ देना चाहिए था। बहरहाल 2 मिनट में मेरी बात खत्म करूंगा। रिलेवेंट है, वो रिलेवेंट जो बातें थी मैंने कही कि क्या है ये फ्लेक्सिबल और वोकेशनल, आप समझ गए। वोकेशनल ट्रेनिंग में हमारे टैलेंटेड बच्चों को हुकूमत कुछ करने वाली नहीं है। यहाँ पर डिक्टेटोरियल सिस्टम शुरू हो चुका है, जो बोल दिया डन डन, ये आपको करना है। हमारे आधारों में जो प्राइवेट एजुकेशन के सिस्टम चला रहे हैं कि टैलेंटेड बच्चों की क्लासेस को छांटा जाए, उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको पढ़ाया जाए, और जो बच्चे आईटीआई लेवल को जाते हैं यानी 35-40-55 मार्क वाले, वो टेक्निकल होते हैं, उनके लिए आईटीआई भी है, और 9वीं से उनको इस तरह के कोर्सेज भी सिखाए जाए। जहां तक टेक्निकल एजुकेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ हमारा जो कौशल्य का प्रोग्राम है 11वीं 12वीं के अंदर टेक्निकल कोर्सेज ऑलरेडी रखे गए हैं। वहाँ पर बच्चों को अपनी 11वीं 12वीं के साथ में जो सर्टिफिकेट मिलता है, वो ब्लड बैंक में भी काम कर सकते हैं। वो बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज वहाँ पर भी खुले हैं। हमारे सिस्टम में जो हमारे साथ में ना बराबरी हो रही है, इस सिस्टम के जरिए से हम 2 तबकात महसूस कर सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2 तबकात बनने जा रहे हैं, एक एजुकेशन गरीबों का और दूसरा एजुकेशन अमीरों का। 500 यूनिवर्सिटी में हमारा नाम नहीं, और फॉरेन की यूनिवर्सिटी को यहाँ लाया जाएगा। अब बताइए वो अट्रैक्शन वहाँ का रहेगा या हमारा रहेगा, ये भी आपके सामने सोचना है। क्योंकि जब कोई फैक्ट्री खुलती है, कोई कंपनी खुलती है, तो वो अपने सामने वाले मध्य मुकाबिल को जब तक जमीन दोस्त नहीं कर देता, तब तक वो उसको चैन से बैठने नहीं देता। क्या हमारा ये निज़ाम तालीम फॉरेन के एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ पर आए और वो अपने आप में एजुकेशन की बागडोर संभाले, हमारे इंस्टीट्यूशन का क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। इस पर भी आपको और हमको गौर करना है। अभी अभी आप देख रहे सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, एनसीईआरटी ने अपना एफिडेविट दिया कि एक नेशन एक एजुकेशन, ये बहुत चल रहा है आजकल, एक एजुकेशन एक जो है तो नेशन। अरे भाई बराबर है, वसुधैव कुटुंबकम हम भी मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल घर में है क्या, ये भी हमको सोचना है। आज आपके बच्चे, मैक्सिमम स्टेट बोर्ड के बच्चे पढ़ने वाले आपके बच्चे रहते हैं। आपके पास बहुत कम बच्चे होंगे जो सीबीएसई लेवल की तालीम हासिल करते हैं। सीबीएसई लेवल की तालीम कौन हासिल करता है? मालदार तबका, अंग्रेजी मीडियम में जाने वाला तबका। जबकि आपके देहात के 60% जो देहातों पर हिंदुस्तान है, और 40% शहरों के अंदर बहुत कम लोग जो तो सीबीएसई में जाते हैं, मालदारों के, ऑफिसरों के, प्रोफेसरों के। वो बच्चे सीबीएसई पैटर्न पढ़ के आ रहे हैं। हर स्टेट का अपना एक स्टेट बोर्ड है, लेकिन आपका नीट के एग्जाम कौन से आप बेस पर देते हो? वो सीबीएसई पैटर्न है। आपका बच्चा डॉक्टर बनने के लिए भी कितनी कोशिश करेगा, उसको आपको महसूस करना है। हर बोर्ड के अंदर, स्टेट बोर्ड के अंदर का सिलेबस और सीबीएसई के सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क है। मैं मैडम से गुजारिश कर लूंगा, पार्लियामेंट से लेकर आज की हमारी महफिल के अंदर
जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एजुकेशन का, गरीबों के बच्चों को गरीब रखा जाए, अमीरों के बच्चों को अमीर रखा जाए, इस सिस्टम को कहीं तो भी तोड़ने के लिए हमको काम करना चाहिए। मैं इस मौके पे बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहतरमा फौजिया खान साहिबा से दरख्वास्त करता हूं कि 2 मिनट के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हमारे मेहमानान का इस्तकबाल सबसे पहले डॉक्टर मेहरुद्दीन ख्वाजा साहब भी तशरीफ़ लाएं और मैडम भी तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर मेहरुद्दीन साहब को ट्रॉफी पेश करेंगी मैम। जी जी बिल्कुल। जनाब अब्दुल करीम सालार साहब की खिदमत में ट्रॉफी पेश की जाएगी और आज के इस सेशन के चेयर डॉक्टर केम सर की खिदमत में ट्रॉफी पेश की जाएगी। हजरात, एक किताब पासबान तालीम का इजरा मैडम और ख्वाजा शाहिद साहब के हाथों होगा। सर वहीं तशरीफ रखें। इसके मुसन्निफ है जनाब शब्बीर शाकिर, महाराष्ट्र की एक अहम तालीमी शख्सियत और फेम के मुंबई, भिवंडी और थाने के कन्वीनर जनाब शब्बीर शाकिर। पासबान तालीम शाकिर साहब आगे आइए, आगे आइए, एक रो में आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। सर ये खुश बच्चे ऊंचे दर्जे, इसके मुसन्निफ है जनाब डॉक्टर हलीमा सादिया और इसमें तर्जुमा तरमीम व इजाफा किया है डॉक्टर मोहम्मद सफ़ी अनवरी साहब ने। इसका इजरा भी मुसन्निफ़ा हलीमा सादिया साहिबा सिंगापुर और इसमें तर्जुमा तरमीम में इजाफा किया है डॉक्टर सफ़ी अनवरी ने। बहुत बहुत शुक्रिया।